آمد ہے ملتان کی مویشی منڈیوں میں کہبہ کہمی عروج پر شہری کم خرچ بلا نشی کے خواہش مند بیپاریوں نے بھی چھریاں تیز کر لی باولپور ڈرنگ اسٹیڈیم میں آل پاکستان 11ویں نشان حیدر ہاکی ٹورنامنٹ جاری تیسرے میچ میں پاکستان ایئر فورس نے ایشیا کی ملک کو 2 گول سے شکست دی لاہور ہائی کورٹ 5 روز کی لارجر بینچ میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہائی کورٹ باب ملتان کے صدر شیر زمان قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم لارجر بینچ نے شیر زمان قریشی اور قیصر عباس کاظمی کے لائسنس بھی معطل کر پولیس کے آئیکو واٹ کے صدر شیر زمان قریشی سمیت خالد اشرف اور محمود اشرف کے گھروں پر چھاپے عدم گرفتاری پر دیگر وکلا کے گھر بھی چھاپے مارے گئے راجہ پور کے کچے کے علاقے میں پولیس کی بھرپور کارروائی ڈاکو کے چنگل سے 7 اہلکار کو بازیاب کروا لیا گیا آپریشن کے دوران ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے رکن صوبائی اسمبلی شوکت ولسن کا بوسٹن ٹاؤن ہال میں ملتان کا دورہ یونین کونسل کے چیئرمین اور وفود سے ملاقات کی یونین کونسل کام میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور مسائل بارے آگاہ کیا گیا محکمہ صحت ملتان کی سادہ ڈینگی مہم بس سٹینڈز اور ریلوے اسٹیشن پر سپرے کا عمل جاری وابلہ قانونی اور شاہ رکن عالم کالونی میں لاروا برآمد 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج ترمیم کے بعد یہ ایک رول تھا کہ یہ کہیں بھی نہیں بنا سکتے ایسا ادارہ کسی صوبے میں جب تک یہ اس قسم کا کوئی ادارہ کوئی پرووینس نہیں بنا سکتا وفاق بنائے گی اور پورے پاکستان میں وہ امپلیمنٹ ہوگا ہیلتھ کیئر کمیشنر کلینک یا لیبارٹری سیل نہیں کر سکتا باولپور میں ڈینٹل پریکٹیشنرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر چودھری مسعود کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن اپنے دائرے سے تجاوز نہ کرے رحیم یاغا میں ڈپٹی کمشنر سکات امان رانا کی زیر صدارت اجلاس ضلع بھر میں لگے واٹر فلٹریشن پلانٹ فعال کر کے عوام کو صاف پانی فراہم کرنے کی حکمت عملی بنائی ملتان میں ایپکا کی 6 روز بھی ہڑتال ڈی سی آفس رجسٹری برانچ میں اینٹی کرپشن کی جانب سے گرفتاریوں کے خلاف دھرنا رحیم یاغان اور مظفر گڑھ میں پٹواریوں کا آج بھی احتجاج مطالبہ کے حق میں نعرے بازی کہتے ہیں مانگیں پوری ہونے تک احتجاج جاری رہے گا باول نگر فوج آباد میں پٹواریوں کا انوکھا احتجاج بینس کے سامنے بین بجائی مظاہرہ کیا اور احتجاجی ریلی بھی نکالی جعلی ڈگریوں کا معاملہ ڈیرہ غازی خان میں طلباء کا احتجاج پولیس کا طلباء کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج متعدد گرفتار ایمرسن کالج ملتان میں ہنگامی موک ایکسرسائز پولیس اور دیگر اداروں کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقیں دہشت گردوں کو پکڑنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا شجاع آباد میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج 4 دیواری سے محروم 3 ماہ سے دیواریں تعمیر نہ ہوئی اہل علاقہ احتجاج ٹائر جلا کر ملتان روڈ بلاک کر یوسی 4 ناسوبہ ملتان میں اسکول کے سامنے گندگی کے ڈھیر تعفن اٹھنے سے اہل علاقہ کو بھی شدید پریشانی کا سامنا طلباء سال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے خلاف سراپا احتجاج
जारी चेक 8 ML के गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान, न पीने का पानी मौजूद, न बैठने को फर्नीचर। स्कूल इंतजामिया की तवज्जो का मुतलक। तालीमी इदारों की 200 मीटर दूर में मशरूबात की फरोख्त जारी, लेकिन भावलपुर में तालीमी इदारों के बाहर मुसरे से मशरूबात की सरेआम फरोख्त जारी। इंतजामिया खामोश, मुसरे से मशरूबात से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। डेरा गाजी खां में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जड़ेबंदी का शिकार। PTI वर्कर्स इत्तेहाद के खिलाफ नजरियाती कारकुन का हंगामी और मसम्मती इजलास। पार्टी में होने वाले जड़ेबंदी की मुखालिफत कर दी। मुजफ्फरगढ़ में तजावुजात की भरमार। अंदरूनी बाजार, कमेटी चौक, गिरजाघर चौक समेत शहर के तमाम बाजारों में कब्जा माफिया का राज। राहगीरों का गुजरना भी मुहाल हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। आए रोज हादसात मामूल बन गए। लोधरा में इकलौते चिल्ड्रन पार्क में आवारा कुत्तों के डेरे। शहरी खौफजदा, बच्चों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। शहरी सैर व तफरीह से महरूम। अगर कोई लेने वाला आए तरीके इंसाफ का, हम इसका 2 लाख मूल मानते हैं। अगर कोई ले हमसे तरीके इंसाफ का, हम इसको 1.5 लाख का देंगे। बाबानगर की मवेशी मंडी में कतरी शहजादे की आमद। लीगी हिमायतियों के लिए महंगे दाम और PTI के कारकुनों के लिए खुसूसी हिदायत। शहर ओलिया की मवेशी मंडी में खूबसूरत सिंधी ऊंटों के डेरे। कोयटा रहीम या खान और डेरा इस्माइल खान के ऊंट भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने। आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चिश्तिया के सामने उबलते गटरों ने शहरियों और मरीजों का अस्पताल के अंदर जाना मुश्किल बना दिया। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया सीवरेज सिस्टम ठीक न कर सकी। अस्पताल के सामने उबलते हुए गटरों के ढक्कन उतार तो लिए गए, लेकिन ढक्कन दोबारा न लगाने पर अस्पताल के सामने पानी ही जमा हो गया। गटरों के पानी से जहां मरीज और इनके लवाहिकीन को परेशानी का सामना है, वहीं अस्पताल के साथ मोहल्ला गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चों को भी सड़क से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इस अहम अवामी मसले पर तहसील म्यूनिसिपल कमेटी को भी आगाह किया, लेकिन इनकी जानिब से पानी को निकालने के लिए कोई खातिर का इंतजाम न किए गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तायुना मेडिकल ऑफिसर का अपनी कुर्सी से गायब रहना मामूल बन गया। मरीज घंटों डॉक्टर का इंतजार करते रहते हैं। कोटदू में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के इमरजेंसी शोबा में तायुनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हाफिज मरीज की कुर्सी तो मौजूद रहती है, लेकिन खुद नजरों से ओझल रहते हैं। डॉक्टर की गैर मौजूदगी से इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर मनपसंद मरीजों को शोबा इंतकाल खून के कमरे में बैठकर चेक करता है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को डिस्पेंसर चेक करके निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर देते हैं। मरीजों का आला हुकाम से मुतालबा है कि अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई जाए और मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। पंजाब हुकूमत की डेंगू मकाऊ मुहिम में तेजी की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान ने डेंगू लार्वे की तल्फी के लिए इकदाम तेज कर दिए। डेंगू लार्वे की मौजूदगी की शिकायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ मुल्तान ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमात अंदराज करवाए। SP पुलिस को मरासला भी जारी किया गया। चेकिंग के दौरान बाबरा कॉलोनी में महमूद जंग या फरीदाबाद में दाता स्वीट शाह रुकने आलम कॉलोनी के वाटर टैंक्स में लार्वा और डेंगू मच्छर बरामद हुआ। हुकूमत पंजाब की सख्त हिदायत पर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा से मुल्तान की जानिब से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर इस्ताद डेंगू मुहिम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली बसों की तलाशी के अलावा अड्डों और बसों में स्प्रे का अमल जारी है। तफसीलात के लिए देखते हैं फैसल जहां की ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की जानिब से डेंगू के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वजारत सेहत की टीम खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई, तो दूसरी जानिब मुल्तान के महकमा सेहत को इस बात का डर पैदा हो गया कि कहीं बस के जरिए डेंगू KPK से मुल्तान न पहुंच जाए। लिहाजा महकमा सेहत की जानिब से अड्डों, रेलवे स्टेशन और बसों में डेंगू की तलाश और स्प्रे का अमल शुरू कर दिया गया है। डेली हमारा ये मतलब कि प्रोसीजर है, हम जाके हर अड्डों पे सफाई करवाते हैं, तो उनको जहाँ पानी खड़ा होता है वो सफाई करवाइए, अड्डों पे स्प्रे करवाते हैं
अब हमारे अर्ली ऑर्डर होंगे, जो बसें बाहर से उनको सफाई करवाएंगे इंशाल्लाह। खास तौर पर पेशावर, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों से आने वाली बसों की अच्छी तरह तलाशी ली जाती है और स्प्रे भी किया जाता है। अगर बाहर से अगर कोई पेशेंट आ जाता है या बाहर से अगर कोई उसमें लार्वा आ जाता है, कोई उसमें मच्छर डेंगू आ जाता है, तो उसको ख़त्म किया जाए। अब उसके लिए स्पेशल जो बाहर से बसें आ रही हैं उसके लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अदरवाइज तो यहाँ पे अभी तक कोई एक पेशेंट भी कन्फर्म नहीं है डेंगू का, अल्लाह का शुक्र। महकमा सेहत का दावा है कि मुल्तान को कई सालों से डेंगू फ्री रखा गया है और इसे आइंदा भी डेंगू फ्री रखने के लिए सरतोड़ कोशिश की जाती रहेगी। कैमरामैन सावल यार के साथ फैसल जहां, मुल्तान। अब कुछ बात करते हैं ईद कुर्बान के हवाले से। जी हां, बावलपुर में भी ईद उल अजहा के मौका पर जिला भर में जानवरों की सेल पॉइंट बनाने के हवाले से डीसी बावलपुर राना सलीम की जेर सदारत आम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला भर के तमाम महकमों के सरबराहों ने शिरकत की। डीसी बावलपुर के इजलास में फैसला किया गया कि जिला भर में जानवरों की सेल के हवाले से 8 पॉइंट लगाए जाएंगे जिनमें किसी किस्म की फीस मौसूल नहीं की जाएगी। डीसी बावलपुर ने डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक अली रजा को हिदायत की कि तमाम पॉइंट्स पर जानवरों को बीमारी से बचाव के लिए स्प्रे और तमाम अद्वियात मुहैया की जाएं। इसके अलावा जिला बावलपुर और तमाम तहसीलों में शिकायत सेल भी कायम किए जाएंगे जिनमें शिकायत होने की सूरत में फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स में जिला भर के तमाम महकमों के सरबराहों ने इजलास में शिरकत की। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ईद कुर्बान के मौका पर मुल्तान में 5 मकामात पर सेल पॉइंट बनाने की मंजूरी दे दी। सेल पॉइंट बावलपुर बाईपास चौक के रामकली के मकाम पर, मुजफ्फरगढ़ रोड के करीब मौजूद समाराना मकाम और दीगर जगहों पर लगाए जाएंगे। सेल पॉइंट के लिए म्यूनिसिपल ऑफिसर और फोकल पर्सन बना दिए गए हैं। मुल्तान में ईद कुर्बान करीब आते ही बकर मंडियां सज गईं। शहरी कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर की तलाश में दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अन्नान याकूब। भर की तरह मुल्तान में भी बकर मंडियों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। जी हां, ईद उल कुर्बान की आमद है। शहरियों की बड़ी तादाद बकर मंडियों में अपने अपने पसंद के जानवर तलाश करने में सरगर्दा नजर आती है। शहरी जानवरों के महंगे होने का शिकवा करते भी नजर आ रहे हैं। मार्केट में जो है बकरा जो है बहुत कॉस्टली दे रहे हैं, बहुत महंगा दे रहे हैं। इन्होंने जो है ना छोटे छोटे बकरे हैं, इन्होंने 65,000 रुपये डिमांड की है, लेकिन हम इनको 30,000 रुपये तक ऑफर की है और हमारा इरादा है अगर हमें 35 लाख भी दे देते हैं तो हम इनको ले जाते हैं। दूसरी जानिब व्यापारी कहते हैं कि वो साल भर जानवरों की खूब आवभगत करते हैं। बाज लोग इतनी कम कीमत लगाते हैं जिससे हमारी लागत भी पूरी नहीं हो पाती। ज्यादा रेट दे रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज महंगी, घास महंगा है, दाना महंगा है, दुकान का किराया है, लड़कियों की दिहाड़ी है, खर्चे नहीं पूरे होते। इससे साल की सारी हमारी मेहनत यही है। व्यापारियों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों को मेहंदी लगाकर खूबसूरत अंदाज में सजाया भी गया है। कैमरामैन सावल यार के साथ अदनान याकूब, मुल्तान। ईद कुर्बान की आमद है। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी कुर्बानी के लिए ऊँटों की मंडियां सज गईं, जहां मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ऊँट लाए गए हैं जिनमें सिंधी ऊँट खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राना तनवीर। ईद करीब आते ही अब जानवर खरीदारी के लिए वक्त रह चुका है बहुत कम, इसीलिए तो शहरी अब जानवर खरीदने के लिए संजीदा नजर आते हैं। बैल और गाय की मंडियों के बाद अब मुल्तान में ऊँटों की मंडियां भी सज गई, जहां मुल्क भर से लाए गए ऊँट शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हम ऊँट खरीदने के लिए आए हैं, खूबसूरत है, बहुत अच्छे ऊँट हैं। अभी तक जो से ये लोग है ना आ रहे हैं काफी तादाद के लिए, अच्छे ऊँट, बहुत अच्छे अच्छे ऊँट है। हम सिंधी ऊँट खरीदने के लिए आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। ऊँटों की कीमत भी बहुत ज्यादा है और ऊँट भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा लगे तो खरीद जाएंगे। 3 लाख का भी ऊँट है, 4 लाख का भी है, 5 लाख भी मांगते हैं। ऊँटों की कीमत बहुत ज्यादा है, अगर कोई पसंद आगे जरूर इंशाल्लाह खरीद कर जाएंगे। सिंध, कोयटा, रहीमियार खान, डेरा इस्माइल खान से बड़ी तादाद में ऊँट लाए गए हैं। खूबसूरती के लिहाज से सिंधी ऊँट अपनी मिसाल आप हैं। विकरा शिकरा है जिवें नसीब विच मिल वेंदे, कोई 2 लाख का विकदे, कोई 2.5 लाख का, कोई 3 लाख का, कोई 1.5 लाख का। कारोबार है अल्लाह वारे से। ऊँट मालकान का कहना है कि सिंधी 4 लाख तक में फरोख्त किया जा रहा है। हसीन और खूबसूरत ऊँटों ने मवेशी मंडियों में आकर मुल्तान की मंडियों को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन फराज अहमद के साथ राना तनवीर रसूल, मुल्तान। आज के दौर में लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने मंडियों का रुख करते हैं, लेकिन वहीं ब्याखा में मकामी सेबीदार ने खास कुर्बानी के लिए ही जानवर पाले हैं। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ आसिम सदी।
खसूसी तौर पर कुर्बानी के लिए तैयार किए गए हैं। मकामी जिम्मेदार आमिर रियाज ने अपने डेरे पर कुर्बानी के जानवर पालना शुरू किए तो साथ ही कारोबार का भी ख्याल आ गया। जानवर इकट्ठे किए और साल भर की मेहनत के बाद खूबसूरत और पले हुए कुर्बानी के जानवर तैयार हो गए। इनकी तैयारी में नियत सिर्फ कुर्बानी की है। आमिर का कहना है कि सबसे अच्छा जानवर वो खुद कुर्बान करेंगे और बाकियों को फरोख्त कर देंगे। हम ये जानवर अपनी कुर्बानी के लिए और मार्केट में फरोख्त के लिए तैयार करते हैं। हमारी कोशिश होती है हमारे फार्म का सबसे अच्छा जानवर हम खुद कुर्बान करें और दूसरे जो जानवर हैं उसकी भी अच्छी देखभाल करके उसके मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिले और अच्छी कीमत में फरोख्त हो। कुर्बानी का जानवर ईद से चंद रोज कब्ल भी आ जाए तो इसके साथ उनसियत एक कुदरती अमल है, लेकिन साल भर की मेहनत के साथ पाले गए जानवरों के साथ मोहब्बत का अंदाजा कुछ और ही होता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह उस शरीफ में भी मवेशी मंडियां सज गई, लेकिन मंडी में सहूलियात के भुगतान के बाद खरीदारों और व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खरीदारों की बड़ी तादाद जानवर खरीदने के लिए मंडी का रुख करने लगी। जानवरों के दामों को पर लगे शहरियों का कहना है कि बकरे हो या बच्चे व्यापारियों मुंह भर के पैसे मांगते हैं। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में सहूलियात न होने के बराबर हैं, जगह कम और रश बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर होती है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। केस हाई कोर्ट के 5 रुखी लाजोबैन ने तौहीन अदालत केस की समाअत में सद हाई कोर्ट बार मुल्तान शेर ज़मां कुरैशी के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं और इन्हें गिरफ्तार करके कल अदालत में पेश करने का हुक्म भी सादर किया गया। लाजोबैन ने इस केस में 2 वकला शेर ज़मां कुरैशी और कैसर वासी के वकालत के नामे भी मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुखी लाजो बेंच ने 24 जुलाई को मुल्तान बेंच में सीनियर जज के नाम की तख्ती उखाड़ने के वाक़े पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। मुसलसल तलब किए जाने के बावजूद अदालत में पेश न होने पर लाजोबैन ने आज हाई कोर्ट बार मुल्तान के सद शेर ज़मां कुरैशी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके उन्हें अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में हड़ताल के बावजूद वकला अदालतों में पेश होते रहे। 165 में से 88 मुकदमा में वकला पेश हुए। जस्टिस अली बाकर नदवी की अदालत में 51 केसेज में 34 केसेज में वकला पेश हुए। जस्टिस मुश्ताक अहमद की अदालत में 49 में से 27 वकला पेश हुए, जबकि चौधरी मोहम्मद इकबाल जस्टिस की अदालत में 33 केसेज में 17 वकला पेश हुए। इसी तरह जस्टिस मुदस्सर खालिद अब्बासी की अदालत में 32 में से 10 वकला पेश हुए। मुल्तान वॉल सिटी प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार। मुसाफिर खाना हरम गेट का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। मुसाफिर खाना हरम गेट के मंसूबे को जून 2016 में मुकम्मल होना था। वॉल सिटी प्रोजेक्ट इटली के ताबन से शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट में हरम गेट, मुसाफिर खाना और सलाफा बाजार शामिल हैं। वॉल सिटी प्रोजेक्ट के लिए इटली की जानिब से 80 करोड़ के फंड्स की मंजूरी तो की गई। वक्त पर मंसूबा शुरू न होने के बायस फंड्स को 40 करोड़ तक महदूद कर दिया गया। वक्त पर फंड्स जारी न किए जाने की वजह से मुसाफिर खाने का मंसूबा ताखीर का शिकार है। भावलपुर में हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहर भर के सरकारी और गैर सरकारी तालीम इदारों के बाहर मशरूबात की रेडियां मौजूद हैं। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत पंजाब ने अगस्त के शुरू में नोटिफिकेशन निकाला था कि पंजाब भर के तालीमी इदारों के बाहर 200 मीटर के कोई मशरूबा की रेडी या किसी किस्म की बोतल बेचने वाला नहीं होगा। ये फैसला तालीमी इदारों के बच्चों की सेहत के लिए किया गया, क्योंकि रेडियो पर लगे मशरूबात में गैर म्यारी होते हैं, जिनसे बच्चों की सेहत मुतासिर होती है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और यहाँ से आपको खबर दें, जलालपुर पीरवाला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। थाना सदर की दूर कोटली आदल में घरेलू तनाज़े पर मुखालफिन का घर में दावा, एक शख्स का कान काट डाला, एक जख्मी है। आपको अपडेट करें, जलालपुर पीरवाला में थाना सदर की हदूद कोटली आदल में घरेलू तनाज़े पर मुखालफिन का घर पर दावा, एक शख्स का कान काट डाला। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना शौकत। जी राना शौकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जलालपुर पीरवाला का नवाई इलाका है, कोटली आदल, जो कि थाना सदर की हदूद में आता है।
تو یہ اس میں افسوسناک واقعہ پیش ہوا ہے جس میں وٹا سٹا کے تنازع پر مخالفین نے ایک محنت کر کے گھر دھاوا بولا، جس پر ایک شخص کا کان کاٹ دیا اور دوسرا زخمی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوٹلی عادل میں وٹا سٹا کے تنازع پر مخالفین کا خان محمد نامی شخص سے گھر دھاوا بولا، جس پر مخالفین نے ڈنڈوں چوٹوں کے بعد سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر خان محمد نامی شخص کا کان کاٹ ڈالا، جبکہ رحیم بخش کو زخمی کر دیا۔ متاثر الزام عائد کرتے ہوئے کا کہنا تھا کہ عبد الخالق، رب نواز، بلو، شاہ نواز اور دیگر 3 نامعلوم افراد نے اچانک گھر پر دھاوا بولا، اور جو لڑائی کی وجہ عناد بتائی جا رہی ہے تو وہ وٹے سٹے کا تنازع بتایا جا رہا ہے، جس میں جو خان محمد ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ عبد الخالق کے بیٹے سے اس کی شادی ہوئی تھی، اور جو عبد الخالق کی بیٹی ہے وہ خان محمد کے بھائی سے شادی ہوئی تھی، جو کہ معمولی رنجش پر کچھ روز قبل خان محمد کی بیٹی کو طلاق دی گئی، جس پر عبد الخالق نے اپنی بیٹی کی طلاق مانگی، تو جس پر متاثرین نے انکار کیا تو عبد الخالق طیش میں آ گیا، جس پر یہ وقوع پیش آیا۔ جی بہت شکریہ رانا شوکت، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا، عبد الخالق کی بیٹی کے خان محمد بھائی کے ساتھ تنازع دیکھنے میں آیا۔ جلال پور پیر والا وٹے سٹے کے تنازع پر مخالفین نے گھر میں گھس کر دعویٰ بول دیا، مخالفین نے تشدد کر کے خان محمد نامی شخص کا کان کاٹ ڈالا۔ ڈیرہ غازی خان میں دریائی کٹاؤ کی وجہ سے یونین کونسل چک رامن کے متعدد موضوعات دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں یونین کونسل چک رامن کے 2 موضوعات کرم شاہ اور بیٹ عالم دریائی کٹاؤ کی وجہ سے مکمل طور پر دریا پٹ ہو گئے، جبکہ موضوع چک رامن، رگ پٹی، میتلا سمیت دریائی کٹاؤ کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں اور ان کے گھر بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ علاقہ وکیلوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ٹبہ بدر شیر کے علاقے عوامی کالونی میں کروڑوں روپے مالیے کی سیوریج پائپ لائن پھٹ گئی، روئی پر خبر نشر ہوتے ہی میئر نے نوٹس لے لیا۔ باورپور کے علاقے عوامی کالونی میں شہر بھر سے آنے والے گٹروں کی پائپ لائنز پھٹ گئی تھیں، جس سے اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پائپ لائنیں پھٹنے سے گندا پانی پینے کے سے شامل ہونے لگا۔ روہی نیوز نے خبر دی تو میونسپل کارپوریشن عقیل نجم بھٹی ہاشمی نے معاملے کا نوٹس لے لیا، کام شروع کرانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ جنوبی پنجاب کا واحد چڑیا گھر انتظامیہ کی غفلت کے باعث اجاڑ بن گیا۔ بندر گھر کے قریب کھڑے بدبودار پانی اور گندگی سے چڑیا گھر آنے والے شہری اذیت میں مبتلا ہونے لگے۔ چڑیا گھر میں درجنوں ملازمین نے باوجود چڑیا گھر کی حالت اظہار انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بندر گھر کی طرف جاتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہاولپور کا چڑیا گھر نہیں بلکہ کوئی اجاڑ جنگل ہے۔ خستہ حال عمارتیں اور پانی کے اوپر گھاس انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے۔ چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے جانوروں اور پرندوں کے گھروں کی مرمت نہیں ہو سکی۔ شہریوں کو تشویش ہے کہ چڑیا گھر کی حالت درست نہ کی گئی تو جنوبی پنجاب کا واحد چڑیا گھر ختم ہو سکتا ہے۔ ٹریفک اہلکاروں کی عدم دلچسپی کی بنا پر نشتر ہسپتال ملتان کے مین گیٹ پر ٹریفک جام معمول بن گیا۔ دوسری جانب روڈ کی دونوں اطراف میں قائم ایمبولینس اسٹینڈ ٹریفک میں الجھن پیدا کرنے لگا۔ تفصیلات جانتے ہیں فیصل جہاں کی اس رپورٹ میں۔ نشتر ہسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر 7 سے 10 ہزار مریض انڈور، آؤٹ ڈور اور ایمرجنسی میں آتے ہیں۔ ایک طرف جنوبی پنجاب بھر سے آنے والے مریضوں کا دباؤ ہے تو دوسری جانب نشتر روڈ پر قائم ایمبولینس سٹینڈ ٹریفک جیم کا باعث بننے لگے ہیں۔ رہی صحیح کسر ہسپتال کی جانب سے سیکورٹی کے نام پر لگائی جانے والی بارڈ نے پوری کر دی ہے، جس کے ذریعے 25 سے 30 فٹ تک کی روڈ عوام کے استعمال میں نہیں ہے۔ انتہائی برے حالات ہیں اور ایک آدمی میرے سامنے بے ہوش ہو گیا ہے گرمی سے، لیکن وہ اندر آرام سے سکون سے ایک ٹوکن آ رہا ہے، اندر سے کوئی آتا ہے ملا میرا پرچی بناتے نہیں ہے۔ اچھا جی بھائی آپ عملے کے بندے؟ ہاں جی میری پرچی بناتے ہیں۔ ان لوگوں کی پرچی مر رہی ہیں، باہر ہم لوگ مر رہے ہیں، کوئی ہمارا کوئی ولی وارث نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گیٹ نمبر 2 جو کہ ہسپتال کا مرکزی گیٹ ہے، رکشوں کا سٹینڈ بن چکا ہے۔ اس گیٹ پر ٹریفک اہلکاروں کی لاپرواہی کے باعث ہر وقت ٹریفک جام رہتی ہے۔ مریضوں کو کافی دیر تک ٹریفک میں پھنس کر اندر جانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پلس کے ہوتے ہوئے لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، یہاں رکشوں کی ٹریفک کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیٹ نمبر 2 پر مستقل بنیاد پر ٹریفک اہلکار کی موجودگی سے ٹریفک کی روانگی کو بحال رکھ کر مریضوں کو پریشانی سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین ساول یار کے ساتھ فیصل جہاں، ملتان۔ اور اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پاکستان برڈز گیلری پجن فلائنگ ٹورنامنٹ کی تقریب تقسیم انعامات نجی ہوٹل میں جاری ہے۔
दोस्तों, हमने ये ऐलान लाहौर में करना था, हमने ये ऐलान गुजरात में करना था, मगर आज हम ये ऐलान सिर्फ मुल्तान और जरार भाई के लिए कर रखा था कि हम जहां जाके मुल्तान वालों को खुशखबरी सुनाएंगे। मैं अपने उस्तादों को यहां खड़े होकर, उस्ताद तुराब हैदर भाई, हाजी यूसुफ, सारे उस्ताद यहां खड़े हो जाएं। हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं आपके लिए। काशिफ, दोस्तों, इत्तेहाद बनते हैं कायम रहने के लिए, इत्तेहाद बनते हैं काम करने के लिए, इत्तेहाद बनते हैं जस्तजू के लिए। तो आज ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है वो फर्जी नहीं होगा, अमली होगा, वो बातों का नहीं होगा। ये इत्तेहाद पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानेगी इस इत्तेहाद को। पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस, पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस, पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस। आज पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस का कयाम वजूद में आ चुका है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान के कबूतर परवरों को आज मुबारकबाद हो। मुल्तान के शौकीनों, आपको मुबारक हो, आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। हर सीजन में आपका शौक होगा, हर सीजन में आपका शौक होगा और एक से बढ़कर एक होगा। अपना मैसेज, ये मैसेज आप अपने दोस्तों को पहुंचाओ कि आज हम मुल्तान वाले सुरखरू हो गए हैं। एक बहुत बड़ा अलायंस बनना है, जिसकी हम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपके पास एक पंफलेट की सूरत में, एक किताब की सूरत में आपको पहुंचाएंगे। अमलन काम होगा, उसमें जो जो बातें होंगी आपके लिए होंगी, खुदा की कसम आपके लिए होंगी। दोस्तों, मैं अभी बहुत मशकूर और ममनून हूं जरार भाई का, जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी, जिन्होंने इतना बड़ा मकाम दिया, और खुसूसन आपका, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए आए हैं और अपने जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई की है। तो मैं जबरदस्त खिलाड़ी पेशिंग पेश करने के लिए खड़े होकर तालियां बजाएं, खड़े होकर तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच। फरमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने माशाल्लाह खून गरमा दिया और जिस ऐलान को इतना लंबा दबा के रखा गया वो आपने मुल्तान और मेरे हिस्से में डाला। मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। मैं माइक देने से पहले सिर्फ आप दोस्तों के 1 या 2 मिनट लेना चाहता हूँ। कुछ गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। वो ये कि हम लफ्जी तौर पर तो हम एक दूसरे को जरूर कहते हैं फराग दिली, प्यार मोहब्बत, अमन, भाईचारा, कबूतर परवरी, अमन का परिंदा, लेकिन हम इसके बिल्कुल बरअक्स चलते हैं। हमने अमलन मुल्तान से बाहर, अब मैं कुछ ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, इस शौक में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो इस शौक के लिए जहर कातिल हैं। मतलब खुद कुछ करना नहीं, दूसरे को करने देना नहीं, और खामखा के इतराज लोगों पे लगाने, तोहमतें लगानी। देखें, मुल्तान में अगर पहला फ्री एंट्री टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड गैलरी, नायाब हैदर, तुराब हैदर और जरार जैदी के हिस्से में आया, तो इसमें जलने की या इसमें बुग्ज करने की जरूरत नहीं है। आप और अमल करें, इससे और आगे बढ़ें।
देखिए, मुखालफीन की वजह से ही शौक होता है, और हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसके मुखालिफ नहीं है वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। तो मुखालिफ है तो शौक है, लेकिन खुदारा इस तरह की मुखालफत नहीं होनी चाहिए कि आप खुद भी कुछ ना करें और दूसरे को भी कुछ ना करने दें। अगर मुल्तान में पहला फ्री एंट्री टूर्नामेंट का ऐलान हुआ है, हमारी टीम ने, मैंने काविश की है, लोगों ने मुझ पे, जरार जैदी पे एतमाद किया जो ये इनामात दिए हैं। अब अगर कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा तो आप पहले कोशिश करते। आपके ऊपर लोग अगर इतना एतबार नहीं करते तो फिर आप जिस शख्स ने, जिसकी टीम ने, जिसने ये काविश की है, तो कम से कम उसको आप इतना बेजा मुखालफत का निशाना न बनाएं। मेरे अब भी जितने मुल्तान के कबूतर परवर हजरात हैं उनके लिए मोस्ट वार्म वेलकम, और मेरे हाथ उनके लिए खुले हैं। वो आए, एक प्लेटफॉर्म पे शौक करें, हम उनके साथ हैं। लेकिन खुदारा ऐसी कोशिश ना करें कि जिससे कबूतर परवरी को धब्बा लगे। नायाब हैदर भाई, तुराब हैदर भाई, आपका शुक्रिया। आपने कबूतर परवरी की गिरा कदर खिदमत पर आपका खलूस और आपका मोहब्बत, इस खेल के लिए आपको शब रोज काविश, आपकी शब रोज काविश कदर की निगाह से देखते हैं और आपको सलाम पेश करते हैं। आप यकीन जानिए कि ये आप दोनों भाइयों की काविश है कि ये शौक जो मैंने लिखा है इस पोस्टर के ऊपर, ये शौक आप भी इस चीज के गवाह हैं कि फुटपाथ से लेके 5 स्टार होटल तक लेके जाने का सेहरा तुराब हैदर, नायाब हैदर और इनकी सारी टीम के, और हम खुद इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और हाजी इब्रार साहब पाकिस्तान में जानी पहचानी शख्सियत, हाजी यूसुफ साहब, आरिफ खान साहब, गयास साहब, खलीफा नवीद साहब, ये वो इस शौक के फूल हैं, उस शौक के वो मोती हैं जिनको पिरो के हार की सूरत में आपके सामने पेश किया जरार जैदी ने। और इनकी इतनी काविशें हैं कि कबूतर परवरी की अगर मैं बयान करने लग जाऊं तो वक्त बहुत कलील है। बहरहाल आप तमाम लोगों से मैं इजाजत चाहते हुए और आपसे मुल्तमिस होते हुए कि खुदारा पॉजिटिव जो मुस्बत लोग हैं उनकी पॉजिटिविटी को बरकरार रखने की कोशिश करें, ऐसी हरकतें ना करें, ऐसी बातें ना करें कि वो पॉजिटिव ना रहें, वो नेगेटिव हो जाएं, वो आपकी तरह हो जाएं। हम ऐसा नहीं चाहते। अब मैं आपसे इजाजत लेते हुए अपने बहुत ही प्यारे भाई जो कराची से तशरीफ लाए हैं और ग्रैंड अलायंस, हम क्योंकि अब सब ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है जो आपने ऐलान किया, आरिफ खान साहब से और तमाम भाई, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप तालियां बजा के इस चीज का इजहार कीजिए। तशरीफ लाते हैं आरिफ खान साहब। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई अच्छा मुखर्रिर नहीं हूँ, लेकिन जरार भाई ने असल में मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे कराची से भी इनवाइट किया और आज मुझे स्टेज पे यहाँ पर खड़ा किया। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ और आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज्जत दी और मुझे यहाँ तक बुलाया। आज मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूँ अपना तुराब भाई का, कि तुराब भाई ने जिस तरह से और नायाब भाई ने जिस तरह से कबूतर परवरी के लिए कोशिशें की, आज को ये शौक जो ये पूरी दुनिया के अंदर हर शख्स जान रहा है, ये इन लोगों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, हम लोगों को जो कबूतर पालने वाले हैं उनको हर शख्स जान रहा है।
اور میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور اپنی جس طرح سے آج جرار بھائی نے اور آپ ملتان والوں نے جس طرح سے گرینڈ الائنس کا پورے پاکستان کے اندر انعقاد آج یہاں سے ابتدا ہوئی ہے. ابتدا ویسے ہم نے کراچی کے اندر کی تھی، جو کہ پھر بعد میں ہم نے گجرات میں اس کا اعلان کرنا تھا، لیکن ماشاءاللہ آج یہاں اپنا آپ کے یہاں سے ملتان سے ہم نے اس کا اعلان کیا ہے. اور میں جرار بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اتنی بڑی محفل سجائی ہے اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. شکریہ. بہت شکریہ عارف بھائی، آپ کے خوبصورت الفاظ، بہت مہربانی. اور اب میں ملتمس ہوں اپنے بہت ہی عزیز اور گرینڈ الائنس کے اہم عہدیدار غیاث احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں. تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم استاد صاحبان، معزز شاگرد صاحبان، السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جرار بھائی کا اور ان کی ٹیم کا کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور یہاں مدعو کیا اور ہمیں عزت بخشی. بات گرینڈ الائنس کی ہو رہی ہے. یہ سفر کراچی سے شروع ہوا تھا. کراچی گرینڈ الائنس کے نام سے اس کا وجود عمل میں آیا تھا. اس کے چیئرمین راجہ حاجی ابرار حسین یہاں موجود ہیں اور وائس چیئرمین استاد عارف احمد خان بھی یہاں موجود ہیں. اس کے بعد اس گرینڈ الائنس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سندھ تک پھیلا. استاد غضنفر مہر صاحب کی گرینڈ الائنس کو بڑھانے میں، اس کو توسیع دینے میں ان کا بہت بڑا تعاون ہے. اس تقریب کے حوالے سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد کل گجرات میں ایک تقریب تھی، وہاں سے ہم یہاں آج ملتان پہنچے ہیں. پہلا اتفاق ہے میرا ملتان آنے کا، مگر آپ لوگوں کی اور جرار بھائی نے جو استقبال کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. گرینڈ الائنس کا جیسے غضنفر مہر صاحب نے اعلان کیا کہ یہ گرینڈ الائنس اب کراچی گرینڈ الائنس نہیں، سندھ گرینڈ الائنس نہیں، بلکہ آل پاکستان پیجن گرینڈ الائنس بن چکا ہے. اور انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اس تقریب کے حوالے سے کہ اس کو وسعت دیں گے، محنت کریں گے، دل کی لگن سے کام کریں گے اور آل ورلڈ گرینڈ چیمپئن کے نام سے یہ پہچانا جائے گا انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر. اور بہت سے بین الاقوامی کھلاڑی ہمارے رابطے میں جو شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں اس گرینڈ الائنس میں. مختلف دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں ہمارے پاس میسج آ رہے ہیں اور اس کا باقاعدہ انشاءاللہ کسی میگزین برڈ گیلری کے اندر انشاءاللہ اس کے اندر نام جائیں گے بالترتیب کہ کون سا کھلاڑی، کون سا استاد، کون سا شاگرد کس ملک کے کس شہر سے گرینڈ الائنس میں شمولیت اختیار کی ہے. ایک پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ مخالفت ضرور ہونی چاہیے. ہم جہاں جہاں بھی گئے پاکستان میں بالکل ہوتی ہے مخالفت، مگر خدا را اس بات کو غور سے سنیں کہ مخالفت ضرور ہونی چاہیے، مگر مخالفت صرف اور صرف آسمان پہ ہونی چاہیے، زمین پہ نہیں. زمین پہ ہم سب دوست ہیں، بھائی ہیں اور ایک خاندان کی طرح ہیں. کبوتر باز کسی بھی رنگ اور نسل کا محتاج نہیں ہوتا، کسی مذہب کا محتاج نہیں ہوتا.
सिर्फ एक कबूतर परवर के हवाले से वो पहचाना जाता है और जाना जाता है। उसकी मोहब्बत बिल्कुल यकसा होती है, चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखता हो।
खुदा का बनाया, पैगंबर ने तो घर खुदा का बनाया, अली ने जन्म लेके उसको सजाया। अली ने जन्म ऑल पाकिस्तान बर्ड्स कैरी पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट की तकरीब तकसीम इनाम निजी होटल में जारी है। दूसरी जानिब आप देख पा रहे थे पीर अलहाज मोहम्मद रमजान कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा उर्स की आखिरी रोज की तकरीबात भी जारी हैं। खबरें आपने जानी न्यूज स्टूडियो से फिलवा कितना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए। मिक्स निराली खास मजे आली। मेरे गाने तो सारे गुनगुनाते हैं ते मैं गुन गांदा हाँ नेस्ले एवरीडे नाल बनी हुई मिक्स चाह दे। पत्ती को जोश दिता नेस्ले एवरीडे पाउडर मिक्स कीता ते खास मजे नाल भरपूर चाह तैयार। मिक्स चाह दा एक्सपर्ट बनना है तो ट्राई करो नेस्ले एवरीडे। छोटा पैक बड़ा मजा। नेस्ले गुड फूड गुड लाइफ। मुल्तान की दरगाहों से, बहावलपुर के महलों से, चोलिस्तान के टीलों से, मियां वाली के गीतों तक सियासी रहनुमाओं की बातें। आपकी हर खुशी, आपकी हर तकलीफ में रोही होगा आपका हमसफर। आपकी आवाज, इस खित्ते की आवाज। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब। दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बात आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें? हम इस वक्त मिस्टर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क्याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ